But our top focus is from the national capital. It's yet another incident of shocking insensitivity that has come to light from Delhi. A college student named Vinay Jindal was mowed down by a speeding vehicle in East Delhi's Vivek Vihar. But the shocking part is that he lay there seething in pain, but nobody helped him. There were bystanders who crowded around him, but none came forward to take him to the hospital. It took about 10 minutes for the police to get there and to rush him to a nearby hospital, where unfortunately that young boy was declared dead. His distraught family claims that the police is not doing enough to arrest the driver who rammed his vehicle into Vinay's bike. हरी भाई, क्या हुआ यहाँ? ऐसे ही यहाँ से रात में एक गाड़ी जैसे शिफ्ट आई थी काफी तेज। एक यहाँ से एक्टिवा आ रही थी, जिसमें शिफ्ट में डिजायर मार के टक्कर ने लेफ्ट से मारा। एक एक्टिवा थी, 2 बच्चे थे, उनके सब फैमिली थी पूरी। उनको उड़ाते उड़ाते गाड़ी से फरार हो गए। अच्छा, उसको पकड़ नहीं पाया, गाड़ी स्पीड में काफी जो लोगों ने पीछा किया उसका। जैसे वो निकला है रोड पे, जैसे वो पहुंचा है उसी टाइम गाड़ी वाला उसको हिट करके चली गया। वो वहाँ पे 9 मिनट तक तड़पता रहा, किसी ने मदद नहीं करी उसकी ना। फिर वो हॉस्पिटल में लेके गए, ना हॉस्पिटल वालों ने मदद करी, ना पुलिस वालों ने मदद करी, किसी ने मदद नहीं करी उसकी। But what's worse is now that the politics that is playing over this death of that young boy, what has now become a political issue is that the Delhi Commissioner of Police, B.S. Bassi, has said that the delay in the ambulance to reach the accident site was due to bad administration by the Delhi government. दिल्ली शहर में हर रोज़ 200 इंजर्ड्स को दिल्ली पुलिस जो है हॉस्पिटल्स ले जाती है, और इस बात से आपको इनकार नहीं होगा कि इंजर्ड्स को हॉस्पिटल ले जाने का जिम्मा पुलिस का नहीं होता। पुलिस का रोल होता है इन्वेस्टिगेशन किया जाए क्राइम के मुतल्लिक। पर चूँकि दिल्ली में एम्बुलेंस व्यवस्था की भयंकर कमी है और इस कमी को मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी पूरा किया जा रहा है, तो इसलिए दिल्ली पुलिस एक अपनी मानवीय रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जो भी इंजर्ड होता है उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल्स रश करती है। और तकरीबन रोज़ के 200 व्यक्तियों को हम रश करते हैं। Joining me in the studio is Mr. Mahendra Gupta. He is the uncle of Vinay Jindal, the deceased in this case. Also joining me from the newsroom is Jugal Purohit. Jugal, I'm going to first come to you. That's a shocking reply, really, a shocking answer coming in from the top cop of Delhi, where politics clearly is playing out over youth's death. Absolutely, Vedika, and while it is the Commissioner's job to speak about and defend his police's actions, it was also his duty to apprise us about just where the investigation has reached. Why after 5 days do we not even have the registration number of the car? Forget arresting the accused in this case. Why are these crucial leads not being followed up? Why is it that the family, as they're claiming to us and as the uncle will also ratify, going from pillar to post to gather evidence for the police to actually come and help them in investigation? In fact, even the locals said that after the incident they sort of tried to chase the car, which is the which was the one in this particular case knocking down the bike. In all of these cases, where is the police? Why isn't the police doing what it is supposed to? And then on top of it, why is it that Mr. Bassi thinks it is appropriate for him to defend the conduct of his force and yet not speak about just why they haven't been able to arrest anyone? So clearly the police trying to shift the blame to the state government, to the lack of ambulances, not doing what it is supposed to do. Jugal, those are some pertinent questions that we must put to the Delhi police, especially B.S. Bassi. But for now, I'm going to come back to you in a moment. I have with me in the studio Mr. Mahendra Gupta. He is the uncle of Vinay Jindal. Mahendra जी, हमें ये बोलिए कि उस रात क्या हुआ था? रात को 11 बजे मेरे पास बैठा था, क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी बहन की शादी होने वाली थी। 15 साल पूर्व उसके फादर का अटैक होने से मृत्यु हो गई। परिवार की आर्थिक पोजीशन खराब थी, उनको मैं अपने पास ले आया। आज 23 तारीख को जुलाई को उसकी शादी होने वाली थी। हम कुछ लोगों ने परिवार के, जो हमारा परिवार है संयुक्त परिवार, सब लोगों ने एक आपस में डोनेशन करके उसकी शादी की व्यवस्था की हुई थी। विनय की पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं था, हम सब लोग इकट्ठा करके उसको देते थे। हम चाहते थे कि कुछ काबिल बने या IPS वगैरह बनना चाहता था। अभी BBA का स्टूडेंट था,
15 दिन पूर्व भी मैंने इसकी 54,000 में फीस 2015-16 सेशन मगर उस रात को आप हमें बोले क्या हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट क्या हुआ, 11:20 पे घर से इसकी मम्मी कहने लगी मेरे दांतों में दर्द है। ये दवाई लेने के लिए जैसे झिलमिल मेन रोड पे गया, वहाँ केमिस्ट शॉप बंद थी। जैसे थोड़ी आगे निकला, कस्तूरबा नगर चौराहे पे पहुँचा, ये बहुत स्लो गाड़ी, बहुत ही भयंकर स्पीड से गाड़ी आ रही थी। इसने ये सब CCTV फुटेज में आया हुआ है, उसने एकदम इसको मारा और ये गिर गया और इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पब्लिक के लोग भी आए, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी कुछ देर के बाद वहाँ पहुँचे। उसके बाद इसको हेडगेवार हॉस्पिटल हमें कहा गया है कि जो लोग वहाँ थे, पब्लिक के लोग, उन्होंने कोई सहायता नहीं की। सहायता उन लोगों ने करने की कोशिश की, गाड़ी के पीछे भी भगे हैं। उसके बाद गाड़ी पकड़ी जा सकती थी अगर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अगर उस टाइम दिल्ली में हमारी पुलिस मुस्तैद होती चौराहे पे तो ये गाड़ी पकड़ी जा सकती थी। लेकिन हमें ये भी कहा गया कि 10 मिनट के लिए 10 मिनट तक वहाँ वो तड़पता रहा और लोग देखते ये तो रहे। आप CCTV की फुटेज में भी देख पा रहे हैं जी। और उसके बाद डेड बॉडी को ले जाके ठीक है हेडगेवार हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको ऐसे घेर दिया गया। और वहाँ जब हम पहुँचे, भारी मात्रा में खून, जैसे कुछ सामने वाला आदमी अगर देख ले तो उसका भी हार्ट फेल हो जाए। ठीक है, डेथ हो गई, पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। पर मानवाधिकार पे हॉस्पिटल वाले ठीक है, एक आम डॉक्टर किसी इंजेक्शन किसी को लगा रहा है, उसको छोड़कर देख सकते थे। उसको खून बह रहा था काफ़ी मात्रा में, सिर से निकल रहा था पीछे की साइड से। मैं पहुंचा, मेरे परिवार के लोग भारी मात्रा में, कॉलोनी के लोगों को जैसे पहुंचा कि एक लड़का झिलमिल का ऐसे एक्सीडेंट हुआ और वो काफ़ी मात्रा में लोग पहुंचे। ठीक है, डेथ हो गई। महेंद्र जी, आप और आपके परिवार जो है इस वक्त पे बहुत कुछ आप पर गुजर रही है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप पुलिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? पुलिस के लिए मैं जिम्मेदारी ठहराता हूं कि रात को जब डेथ हो जाती है, मैं चाहता था कि इसकी आंखें दान हो जाएं, क्योंकि मैं तो खुद अपना और अपने परिवार, अपनी मिसेज, अपनी मम्मी वगैरह का हम कहते हैं कि अगर हमारी कभी डेथ पता नहीं किस अवस्था में होगी, हमारी तो फुल बॉडी डोनेट कर दी जाए। मैं कई बार लोगों के रक्तदान के लिए भी मैं अग्रसर रहता हूँ, अनाजिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं डॉक्टरों को कई बार चैलेंज करके, डॉक्टर साहब खून की वजह से किसी पेशेंट की जान ना जा पाए जी, और मैं कराता रहता हूँ। तो मैं सोचा इसकी डेथ तो हो गई, पर जाते जाते नेत्रदान अगर इसके हो जाए तो ये खूबसूरत दुनिया इसके मरने के बाद भी लोग देखें। तो आप पुलिस से गुस्सा क्यों हैं आज? पुलिस से गुस्सा इसलिए है हम कि मैंने कहा कि इसको अगर पोस्टमार्टम से बचाया जाए तो या इसकी आंखें यहाँ हॉस्पिटल में ले ली जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम करते रहे आप। अब उसको समय 12 घंटे बाद पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद आंखें काम नहीं आएंगी। उसके बाद पुलिस के अधिकारी हमको वहाँ छोड़ के चली गए। एम्बुलेंस हमारे माननीय संटी जी, जितेंद्र सिंह संटी, पूर्व विधायक, वहाँ मौके पहुँचे, उनकी गाड़ी से वहाँ उनको पहुँचाया गया 30,000 में, जहाँ मोस्त्री है। वहाँ हमको कहा गया सुबह 6 बजे आप थाने में आ जाएं। हम 3 बजे थाने में गए, वहाँ हम बैठे रहे। ये कहते इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स के आजकल करती है, थाना इसका काम नहीं देखती है। SI रामदेव जी को नियुक्त किया, मेरी उस समय 5 बजे उनसे बात हो गई, भाई मैं तो 10 बजे आऊँगा थाने में, मगर 10 बजे अगर आप आएंगे तो 12 बजे वहाँ पहुँचेंगे। तो आप ये बोल रहे हैं कि परेशानी तो हुई है आपको, जहाँ दिल्ली पुलिस का सवाल है। लेकिन हमने अभी एक और रिएक्शन आपको सुनवाया था BS बसी का, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। वो कह रहे हैं कि जिम्मा एक्सीडेंट्स का हम पे नहीं है, जो डिले हुआ है पुलिस का वहाँ पहुँचने में वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। तो आपको लगता है अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है? तो वो पुलिस के अधिकारी मौके पे पहुंच के बाद में लाश के ऊपर पैसे तो मांग सकते हैं, उसमें बस्ती साहब क्या कहना चाहेंगे, मैं पूछ रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पैसे भी मांगे गए हैं? पैसे मांगेंगे, वो कहते हैं डेड बॉडी जो है इसकी मदर को दी जाएगी। इसकी मदर, जिसका लड़का 20 साल का मर जाए, जिसकी बहन का भाई मर जाए, वो क्या वो डेड बॉडी लेने के लिए तैयार होंगे? वो तड़प तड़प के पूरी कॉलोनी रो रही थी, पूरी कॉलोनी की दुकानें बंद थी, पूरी कॉलोनी में खाना नहीं बना, और वहाँ पुलिस के अधिकारी कहें SI रामदेव कि डेड बॉडी जो मिलेगी इसकी मदर को देंगे, आपको नहीं देंगे, जब सारी कॉलोनी कह रही है कि इसका मामा है ये। तो पैसे किसने मांगे फिर? SI रामदेव उस पर वो करता रहा, यानी कि क्यों मांगा? भाई नहीं तो इसकी मम्मी को देंगे डेड बॉडी। वो हमको कहता रहा, अभी तरीके, अभी मैंने एक डेड बॉडी की मतलब पोस्टमार्टम कराई, मैंने 4 दिन निकाल दिए। भाई आपको भी इसी तरह परेशान होना पड़ेगा, आपको 6 दिन लग सकते हैं। फिर माननीय ACP जयकिशन जी से मैंने संपर्क किया, मगर ये ऐसे ऐसे हो रहेगा। हालांकि वो जयकिशन को बतलाता रहा एक SI दिल्ली पुलिस का क्राइम टीम का। फिर जब उन्होंने काफ़ी जोर दे के एक टीम बनाई, मैंने कहा जी थाने का आदमी जाना चाहिए, हमारे थाने का, भाई ऊपर से स्पेशल स्टाफ से एक आदमी आया, ठीक है आपने टीम बना दी भाई,
वो हमको परेशान कर रहा है। इसकी मदर को डेड बॉडी देना, जिसका जवान बेटा मर जाए 20 साल का, क्या वो पोस्टमार्टम हाउस जाके डेड बॉडी ले सकती है? यानी कि हम चिल्लाते रहे, हमारे काफी परिवार के लोग एक बार थाने में खड़े रहे, फिर यहाँ से वो एसआई तैयार हुआ, वहां भी हमको बरकराता रहा, क्योंकि उसने हमको पहले कह दिया था कि मैंने 4 दिन लग जाते हैं पोस्टमार्टम होने में। और इस केस में अभी तक कोई अरेस्ट हुआ नहीं है? इस केस में एक गाड़ी हमको किसी ने बताया कि विज्ञान लोक की तरफ भगी है, विज्ञान बिहार वहां से पास में है। अगले दिन हमारे लोगों ने पकड़ ली एक गाड़ी को, जिस ढंग से हमने सीसीटीवी फुटेज उसको हमने बरामद करा दिया पुलिस को। हालांकि एसआई को नंबर प्लेट दिख रहा है आपको? सब कुछ दिख, यानी सीसीटीवी के उसमें नहीं है, पर ये गाड़ी जिस ढंग से उसने मारा है, ये गाड़ी को हमने अरेस्ट, हम ये नहीं कह रहे इस गाड़ी ने हो सकता है किया, मगर उस पे डेंट दिख रहा है कोई? सब कुछ क्लियर है, पूरा सब टूटा हुआ है। गाड़ी को 2 दिन से थाने में, हालांकि हमने तुरंत क्राइम टीम से बात की, गाड़ी वो कहते हैं बाद में कर लो, उसके परिवार को सब पूछो भाई। जब हमने अड़ोस पड़ोस वालों से बात की, मुझे नहीं पता कौन गुमराह कर रहा है, उसके परिवार के कितने मेंबर हैं, कौन क्या करता है, ड्रिंकिंग करता है नहीं करता, कोई तहकीकात नहीं हो रही। थाने में गाड़ी खड़ी है 2 दिन से जी। वो कहते हैं, वो परिवार कहते हैं 1 हफ्ते पहले गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, 15 तारीख की फोटो दिखा रहा है, हमने हमारी गाड़ी 15 तारीख को हुई थी। गाड़ी का काम क्यों नहीं करा रहे? नई गाड़ी है, वो नो क्लेम बोनस हमको अगले महीने मिलेगा। क्या जिसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए 3000 रुपये नो क्लेम बोनस उसको मिलेगा 2 महीने बाद? वो जब तक उसकी इंतजार करेगा भी, वो कह रहे हैं गाड़ी मालिक अगले महीने हमारा नो क्लेम बोनस। तो आप बोल रहे हैं एक गाड़ी है जो आपने क्राइम ब्रांच को बोला है कि यही गाड़ी लगती है, हाँ, जिसने आपके नेव्यू को मारा हुआ है। आप अब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पे है, जो वो उनको बचाने की कोशिश कर रही है, वो हमको गुमराह कर रही है, कहते हैं गाड़ी नहीं है। कवर अप हो रहा है इस केस में। वो कह रही है गाड़ी नहीं है, हम कब कहते हैं गाड़ी है, पर कम से कम उसके परिवार के, अड़ोस के, पड़ोस से गाड़ी, वो कहते हैं कि 10 दिन पहले ठुकी थी, कहाँ ठुकी थी, पूछो तो सही उसके परिवार वालों से। बोला कितने मेंबर है उस परिवार में, एक बुजुर्ग को लाके खड़ा कर दिया। बुजुर्ग ठीक है, वो गाड़ी जो उसका लड़का चला रहा होगा, ड्राइवर चला रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे गाड़ी, हमको लगता है क्योंकि हमको किसी ने बताया कि गाड़ी विज्ञान बिहार के अंदर एक बहुत तेजी से गई है। रोड पे जो सीसी कैमरे कुछ खराब है, कुछ ठीक है, उनकी तहकीकात तो करें। हमने जब सीसीटीवी फुटेज निकाल ली, हमारे लोग आज दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी आईपी का स्टूडेंट है, ये 2nd ईयर का, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं बनती दिल्ली सरकार की? इतने करोड़ रुपए विज्ञापन के बढ़, ये हमारा दिल्ली सरकार का ही तो स्टूडेंट था, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? परिवार की आर्थिक बोझ का, बड़े बड़े अखबारों में हादसे ने बुझाया घर का चिराग, सब अगले उसमें आया हुआ है, प्रोटेस्ट पे लोग। उसके बाद आज जब दिल्ली सरकार या वहां का जो विधायक, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। पूर्व विधायक तो आ सकता है, निगम पार्षद आ सकती है, वर्तमान में जो निर्दलीय बहन प्रीति वहां से जीती हुई है, हजारों लोगों का समर्थन, लोगों के घरों में रोटियां नहीं बन रही। वहां से जो विधायक, जो दिल्ली सरकार के ये अपने इसके स्पीकर हैं विधानसभा के, जिसका उनके विधानसभा का स्टूडेंट था ये जी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। महेंद्र जी, मेरा लास्ट प्रश्न आपको ये है कि आपका क्या संदेश है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अब एक तो मैं चाहता हूं कि पोस्टमार्टम 24 घंटे हो। भाई अगर कोई आंखें दान देना चाहता है सही। जब हम ये चाहते हैं कि जीते जी रकत दान, जाते जाते नेत्रदान, अंगदान लोग देना चाहते हैं। हमने गुरु नानक हॉस्पिटल की आई टीम से वो किया, वो कहते हैं जब पोस्टमार्टम हो जाए जब हमें फोन करना। पहले तो हमारी पोस्टमार्टम लेट हो रही है, फिर हम वहाँ 2 घंटे इंतजार करें। और क्या मांग है आपके? हमारी मांग है कि पोस्टमार्टम 24 घंटे हो, 7 दिन हो। और स्टूडेंट मर गया, उसकी अगर आर्थिक पोजीशन घर की हो तो उसको ना दें आप मुआवजा, घर की पोजीशन देखिए जिसके लिए पड़ोसी पैसा देते हो इकट्ठा करके, जिसके लिए पड़ोसी ने पैसा दिया हो जी, वो तो तैयार है। हमारी सरकार विज्ञापन पर खर्च कर रही है, राजनीति मैं नहीं चाहता हो, पर यह है कि ये जो स्टूडेंट, तो आपको लगता है अगर यही इंसिडेंट हुआ होता किसी के साथ जो रईस है और आर्थिक स्थिति में ना हो, तो फिर पुलिस बहुत जल्दी पकड़ लेती जो अक्यूज है इस केस में? मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो परिवार है वो आर्थिक स्थिति में है, आप कह रहे हैं, और अगर ये आपका अगर विनय नहीं होता, कोई और होता जो आर्थिक स्थिति में ना होता, तो दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द उस अक्यूज को पकड़ लेता। अगर जहां इनको राजनीति करनी होती है, मीनाक्षी हत्याकांड हुआ दिल्ली के अंदर, वहां मुख्यमंत्री पहुंचते हैं राजनीति करने के लिए, 5 लाख रुपए मुआवजे का आह्वान करते हैं। क्या जो वहां के जो विधायक हैं, जो दिल्ली के स्पीकर भी हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं बनती कि भी तुम्हारा एक वोटर मरा हैगा तुम्हारी विधानसभा का,
राजनीतिक मतभेदों को बुला देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई इसका परिवार अनाथ हो गया, हमेशा के लिए परिवार का चिराग बुझ गया, वंश खत्म हो गया, क्या माननीय विधायक जी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जी। आज शाम को 6 बजे भारी मात्रा में स्टूडेंट पहुंच रहे हैं जहां दुर्घटना स्थल पे वो प्रोटेस्ट करेंगे। 1000 की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं, भारी मात्रा में बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं और झिलमिल से कैंडल मार्च शुरू होगा, दुर्घटना का स्थल तक जाएगा। अगर उसके बावजूद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम विधानसभा पे आत्मदाह भी अगर हमको करना पड़ा तो हम करेंगे। दिल्ली सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से अपील करता हूं मैं आज कि तुरंत इस परिवार को चलाने के लिए आप जो भी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक पोषण दी जाए और इस तरह के केसों पर जो दिल्ली के हमारे सत्येंद्र जैन जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, सभी पोस्टमार्टम हाउस 24 घंटे चलने चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। All right, that was Mr. Mahindra Gupta. Thank you so much for speaking.